Uh, in general, what's your feeling about this? Anyone? You found it difficult, easy, moderate, or आरसीज में much smaller sir I thought. हाँ क्या था? आरसीज छोटे छोटे थे, मतलब ऐसा ज्यादा बड़े लगे नहीं था आरसीज की बात में. RCs बड़े ही लगे, ओके, तो बड़े चलो इज वन थिंग, बट व्हाट अबाउट द डिफिकल्टी लेवल? व्हाट अबाउट द इजी क्वेश्चन? इजी लगी, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगी सर ये वाली मॉडल. ओके ओके ओके, ठीक, ओके, एनीवन एल्स? ठीक है, सो नाउ फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। अभी हम पहले तो ये देखेंगे कि पहले क्या किया। पहले मोस्टली पीपल अटेम्प्ट आरसी और पीपल अटेम्प्टेड बीए फर्स्ट। आरसी से। आरसीज, ओके। I नाउ always attempt BA first. you attempted BA first, okay, ठीक है। तो let's say hypothetically if somebody wants to attempt RC first, in any case what would be the order in which you will go about selecting? So as soon as we have four RCs in front of us, the first thing is कि हम इसको किस order में handle करेंगे। पहले कौन सा करेंगे फिर कौन सा करेंगे, ओके, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट एटलीस्ट इन योर माइंड यू आर क्लियर कि आप जो हैंडल कर सकते हो उसको पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, और जो थोड़े से ज्यादा चैलेंजिंग एरियाज लगते हैं आपको उसको आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। तो if let's say if I were you, okay, I was giving this particular mock, then I would simply go to first one. I'll say, okay, incubators, accelerators, garages, laboratories, biggest big companies, innovation unit, government laboratories. Fine. This looks all right. ऐसा कोई इसमें एब्स्ट्रैक्ट सी जनरली क्या होता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट सा टॉपिक होता है उसको हमारे दिमाग में एकदम से पिक्चर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट? इट्स डिफिकल्ट टू विजुअलाइज, इट्स डिफिकल्ट टू गेट सम स्ट्रॉन्ग समथिंग वेयर वी कैन होल्ड ऑन टू, बट इसमें ऐसा नहीं लग रहा, तो इसको हम रख लेंगे इन द इनिशियल दिस थिंग, दैट ओके आई विल अटेम्प्ट दिस फाइन इन द बिगिनिंग। लेट मी हैव अ लुक एट द सेकंड वन। So truth about language, chief proponents, language has its origin in gestures, language. So we've done many passages about language. So okay, this would be moderate, I would say. I would not go upfront on this, but maybe I'll keep it, in the second round. Okay, let me go to the third one. When lean mice, neurons, feeding, gene expression, activity, fatty acids. So, okay. थोड़ा सा, it's not really giving a very clear picture that what is it that he's trying to do. So I would probably do it a little later. Okay, I'll not do it in the beginning. एंड देन मैन्युफैक्चरिंग कोर जर्मनी, जर्मन कंपनी, परफेक्ट स्टॉर्म। ये जो कंपनी के पैसेजेस होते हैं जनरली आई सीन, ओके, जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं, कोई सम बिजनेस डिसीजन हुआ है या कोई सम समथिंग रिलेटेड टू इंडस्ट्री और एनीथिंग, ये कॉन्क्रीट होते हैं, तो आई वुड जनरली रेकमेंड देम टू बी पिक्ड अप इन द बिगिनिंग। सो मैंने जो 1 2 3 4 अभी देख लिए, तो मेरे हिसाब से आई वुड हैव हैंडल्ड फर्स्ट एंड फोर्थ इन द बिगिनिंग। Okay, these two I would have attempted शुरू में, and then I would have gone to third. So sorry, second language wala, and then I would have gone to the fourth one. So this would have been my order. Now, what is your view? What's your view? Whoever let's say did four or did three, so I would have done first, then fourth, then second, and then if time permits, third. So anybody's view? Anybody? Sir, sir, personally, so since I often read articles about, biology and Right, languages in general as well. So right, these topics are pretty familiar to me. So right, I think if I'm picking up a passage like this, right. it would not take a lot of time for me to comprehend it in the first go. So I Okay, generally pick up topics that are familiar to me, or at least the all right. topic that they're All talking right. about So, is so familiar which to one me. did you pick up first year? Sir, I did the mice one first, Okay. and no, I think I did the language one first, and then I Okay. did the mice one. Also, Okay. since there was a lot of scrolling involved, I couldn't do the third passage. Like I noticed that I had already spent a lot of time in the first passage itself. So So you mean to then say you I were able to do two? yes, sir, and Okay. then I switched to VA. Then you switch to Yes, BA. Okay. yes. Okay. So, all right. So this is another point. Okay. I'll tell you another point here. Because if you see, when we see the third passage, it would have taken a long time. I can very well see, even if you are comfortable with the language or with whatever is the course, the content of the third passage is mice matter. These mice questions are very dicey, and I would even dare say that one or two questions, I mean, I don't even agree to what his answers are. So अभी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, but
they took me. See, I did it in the end, but they took me a little longer than what I could do these three passages in. ये मुझे काफी टाइम लगा, क्योंकि इसमें ये जो क्वेश्चंस, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा, I mean, it is very challenging question, and similarly, this question also I found it pretty challenging. Okay, ये जो दो क्वेश्चन थे इसमें, ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग थे. ये दोनों क्वेश्चंस ओके, दे वर नॉट दैट डिफिकल्ट इन दिस एज पर मी. बट मुझे ये दोनों क्वेश्चन में काफी टाइम लगा, काफी सोचना पड़ा, और फिर भी मैंने भी गलत किया. Okay, so I also attempted them wrong. Okay, both of these when I attempted them, that was wrong. मतलब मेरे दोनों कुछ दोनों आंसर गलत हुए. Whereas if we look at, I mean, I'm just giving you my perspective. Okay, we can take everybody's perspective on that. ये वाला जो पैसेज था, okay, इसके अंदर if you see the first question was very easy. Okay, इसमें I don't think anybody should have had a problem in identifying the main idea of this passage. Style of the passage, now somebody might have got confused between analytical and argumentative. Okay, these two were anyway easily you could eliminate. Argumentative भी नहीं है, because there's no that kind of language where it says there's a debate or a controversy or a counter argument or stuff like that. So this was also okay. Okay, this one was a little difficult. This was a very difficult question here, because this was not a direct and there's nothing given here. अभी इसके ऊपर भी बात करते हैं डिटेल में. तो ये मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा उसमें, क्योंकि जितना ये जहां पे ये दिया हुआ है वहां से इसके ऊपर आना करेक्ट आंसर पे थोड़ा सा चैलेंजिंग. वो आप एलिमिनेशन से आ सकते हो. एंड दिस वाज इजी क्वेश्चन. दिस वाज इजी. फोर्थ वाज वेरी, इनफैक्ट आई वुड से दैट दिस फोर्थ क्वेश्चन इज द इजीएस्ट फॉर द होल लॉट. तो अगर किसी ने फर्स्ट पैसेज नहीं किया है, तो यू वुड हैव मिस्ड आउट एटलीस्ट थ्री इन माय ओपिनियन. एंड आई मीन, इसमें कुछ ऐसा ज्यादा चैलेंजिंग था नहीं. इसमें सिर्फ यही बताया कि जो इंक्यूबेटर्स और ये सब एक्सेलरेटर्स और ये होते हैं, तो ये गवर्नमेंट इसको यूज करके बहुत सारी चीजें कर रही है. एंड दे आर हेल्पिंग. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट रिलेटेबल टू इंडिया. ये वाला जो पैसेज है, ये इंडिया में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन ये अगर आप बाकी की जो कंट्रीज हैं उसमें देखेंगे, तो यहाँ पे जो रेफरेंस भी दिया हुआ है, फ्रांस का दिया हुआ है, बॉस्टन वगैरह का दिया है. तो ये गवर्नमेंट की तरफ ये लोग काम कर रहे हैं और कुछ इनोवेशन डेवलप कर रहे हैं उसके बारे में. So this I would have, as I said, I would have found it easy to do. Second was again uh, थोड़ा सा चैलेंजिंग था. इसमें एक क्वेश्चन चैलेंजिंग था. I would say this question, first question, was a little challenging. And okay, बाकी के questions इसमें बहुत ज्यादा difficult नहीं थे, थोड़ा moderate था. ये just yes, this as I said, and then this one was again easy. This was not difficult. इसमें आपको अगर देखेंगे तो ये question जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग था. बाकी दिस दिस वाज ऑल्सो, इसका भी थोड़ा सा आंसर का मुझे से वो है डाउट है. बाकी ये दोनों क्वेश्चन इजी थे. दिस टू 15 and 16 वर अगेन 15th was easy, 16th was a little more tricky. So that's my take. Okay, that's my take. अभी हम उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. So I would have gone with that. Now so of course now some of you would have gone with a different this thing order. तो ठीक है, अभी हम देखते हैं. अभी हम पहले बीए के क्वेश्चंस का एक बार रिव्यू करते हैं. नाउ BA questions, if you see the parajumbles here, this time they were pretty difficult. You agree or not? Do you Sir, all I agree? did. Sir, I did 2 correct out of 3. So 2 correct out of 3. Okay, fine. yes. तो ठीक है, डिफिकल्ट थे. जैसे ये था, ये करेक्ट हो गया होगा. ओके, ये करेक्ट हो गया होगा. बट दिस वाज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. आल्सो इट नीडेड सम एप्लीकेशन. कि इसमें अब जैसे ये वाला देखें, कुड इट इन फैक्ट बी राइट. Now this question can either begin the paragraph or it can come in the middle. If it comes in the middle, then there has to be an answer to this. और अगर ये शुरू में आता है, तो this has to again be followed by the answer to this. But in fact यहाँ पे आ गया, could it in fact be, so this cannot come in the beginning. Okay, तो इसमें हम फोर्थ से स्टार्ट किया था हमने. The practical utility of this is undeniable and probably a good thing overall, but there is still something deeply lacking in the approach, which is conveyed by the single word understanding. अब इसमें अगर हम कनेक्शंस देखें, तो हमारे पास में देखो, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो ओपनिंग स्टेटमेंट, तो आप भी इसको इस तरह से कर सकते हो. सी, machine language has never focused on understanding language. Instead, the field. So this the field is referring to machine translation. Therefore, 1 and 3 are basically a mandatory pair. 1 and 3 are mandatory pair. तो अब आपके पास में अगर हमने इसको करना है, तो let's do take this approach. You have now only 3 options. Either they can come here, or they can come here, or they can come here.
That's the only three options now left, okay, out of whatever permutation combination possible. Since we've got a very clear connection between sentence 1 and 3, so we know that it has to be one of these three. Now, which one that has to be? Okay, तो अब हम अगर इसको 1 और 3 को ओपनिंग में रख देते हैं, machine language translation has never focused on understanding. Instead, the field has tried to decode and not worrying about understanding and meaning. The practical utility of, देखो ये सडनली आप अगर 1 और 3 को बिगनिंग में लोगो तो ये कहाँ से आ गया गूगल ट्रांसलेट एंड पॉपुलर टेक्नोलॉजीज? Practical utility. So this doesn't really, 3 doesn't flow into this 4. So we can rule this out. Now, if suppose we put it in the end, then again, as we have discussed this question cannot come in the beginning, or it cannot really uh, come on the second. Therefore, this also is ruled out, and our correct option becomes 4132. So practical utility is undeniable, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, तो मशीन लैंग्वेज ने अंडरस्टैंडिंग पे फोकस नहीं किया, इंस्टेड इसने सिर्फ डिकोड पे फोकस किया. सो देयरफॉर कुड इट बी अ फैक्ट दैट अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड टू इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट वेल. सो एक क्वेश्चन करके इसने लास्ट में छोड़ दिया. 4132 बिकम द एंड. थोड़ा सा चैलेंज है, नॉट दैट इजी आल्सो. आई एम श्योर बहुत ज्यादा लोगों का भी करेक्ट नहीं हुआ है. लेट मी नाउ गो टू द नेक्स्ट वन. यस, दिस वाज अ लिटिल चैलेंजिंग. ये करेक्ट हुआ आप लोगों का? ये करेक्ट हुआ या अटेम्प्ट भी नहीं किया? ये और अटेम्प्ट अटेम्प्ट नहीं किया? किया था। अटेम्प्ट नहीं किया. ओके, तो इसमें अब देखो, ये थोड़ा सा लंबा है, और इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो फोटोग्राफ्स है, थ्रू इट्स रिफाइंड नोशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑथेंटिसिटी, पोस्ट मॉडर्निज्म ऑफर्स इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल ओरिएंटेशन बाय विच टू कंसिडर फोटोग्राफिक प्रोसेस टू बेटर अप्रेज, प्रिजर्व एंड रिप्रेजेंट इमेजेस. तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने हेल्प किया है. Okay? To better appraise means to evaluate, preserve, and represent images. Understanding context and connotation improves the ability to provide deeper description of visual holdings. Traditional reliance on written and spoken word has given way to photographs being regarded as, ये important point है यहाँ पे, कि photographs को valid historical evidence माना जा रहा है. ओके, पहले क्या था कि वो सिर्फ रिटन और स्पोकन वर्ड को रिलाई करते थे हिस्टोरिकल एविडेंस, लेकिन नाउ फोटोग्राफ्स आल्सो हैव बीन taken as historical evidence. The information that images provide and their capacity to evoke has this thing. Now influenced both by increased visual literacy and all of this, a greater understanding of photographs help examine the context. So let's look at the option. Postmodernism can help scholarly research by enhancing the process of understanding and examining photographs for context and connotation. तो अब देखो इसमें, yes, one needs to spend a little more time on this question to understand why ये गलत आंसर है. गलत क्यों है? Can anybody tell me why this is wrong? जिन्होंने भी किया है, और अगर गलत भी किया है, सही भी किया है, तो why this is wrong? See, this is wrong because यहाँ पे हिस्ट्री की बात नहीं की उसने. Okay, has he, in what context is he talking? Can help scholarly research of what? यहाँ पे हिस्ट्री की बात है ना, कि जो फोटोग्राफ जो है इनको एक वैलिड हिस्टोरिकल एविडेंस माना जाएगा. तो अगर आप हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हो, तो आपको जो फोटोग्राफ्स हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिए गए हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने की. तो यहाँ पे वो बात नहीं बताई है इसने. बाय एनहांसिंग द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जामिनिंग फोटोग्राफ फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड इज फाइन. दिस इज ओके. ये जो समरी है, दिस इज ओके, बट दिस इज इनकम्प्लीट इन द सेंस इट डज नॉट कन्वे ये फोटोग्राफ्स को आप किस पर्पस के लिए यूज करने जा रहे हैं. देयरफॉर दिस इज रॉन्ग. Scholarly research will benefit from rise in credibility of photographs as historical evidence. वो इसने यहाँ पे बता दिया. An enhancement in way photographs are analyzed for context about what about by postmortem. This okay. This looks okay. The historic information offered by photographs has been greatly refined by the lens of postmodernism. देखो, रिफाइन कुछ नहीं किया उसने. उसने उसकी क्रेडिबिलिटी को एनहांस किया है. इट डजंट मीन उसको रिफाइन कर दिया फोटोग्राफ्स, और इंफॉर्मेशन को रिफाइन कर दिया. वो नहीं बोल रहा है कि हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन को रिफाइन कर दिया बाय वे ऑफ फोटोग्राफ्स. ओके, तो इसलिए ये इसमें एक डिस्टॉर्शन है, तो ये गलत है. इट इज टू पोस्ट मॉडर्निज्म क्रेडिट दैट स्कॉलर्स आर नाउ एबल टू यूज फोटोग्राफ्स एज credible sources of historical. See, it is not to force postmodernism's credit. Yes, postmodernism has helped. Okay, it has
aided, but it doesn't mean that कि it is to its credit. ये उसी का एक क्रेडिट है कि ऐसा होने लगा, तो ये भी गलत है, इसलिए इसमें बी करेक्ट. ओके, अप्रेज मतलब इवेलुएट, प्रिजर्व और रिव्यू. ओके, आई होप इट्स क्लियर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. दिस वाज नॉट, नहीं नहीं, दैट डज नॉट इंडिकेट रिफाइन. ओके, रिफाइन किसको कर रहा है? आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो कि बेटर अप्रेज, प्रिजर्व एंड रिप्रेजेंट इमेजेस. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को ग्रेटली रिफाइन किया है, इंफॉर्मेशन को रिफाइन नहीं किया है. ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग. ऑलराइट, if the first half is relatable, then the reader or listener will automatically make sense of the second half. तो अब इसको कहाँ पे लगाएं? For anti-metabold to be effective, it does not really have to be grammatically correct, but it has to be logical. तो फर्स्ट हाफ की तो अभी बात ही नहीं हुई है कहीं पे. ओके, सो रीडर लिसनर ऑटोमेटिकली मेक सेंस द सेकंड हाफ. तो ये हम यहाँ पे सेकंड, इसमें इस सेंटेंस में कोई इसका रेफरेंस नहीं है. पीपल आफ्टर स्टडिंग लिटरेचर will start thinking they can churn out empty metaboles with a snap of finger. ये भी नहीं है. They fail to understand, so this they refers to people here, so therefore it cannot come at second also. Third में anti metaboles are popular and effective solely because they appeal to reason and are easy to remember. Okay, तो ये एक अलग पॉइंट है. अगर हम यहाँ पे लगा देते इसको, तो then this doesn't follow from this. If the first half is relatable, they will make sense of the second half. For example, it is not about the years in your life, it is about the life in your years. So यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि दो पार्ट है इसके. तो therefore this has to come at both. So this was not very difficult, I would say. Do you agree? Let's go to the next one. Okay, this was still the easiest dumbbell, I would say, among these three. We start with three, start asking 4-year high school students what career they want, or rather they will probably say. So obviously 3 and 1 are linked. Okay, then दो सेंटेंस में फॉर्मेट की बात हुई है. यहाँ पे बोल रहा है ऑल्सो द फॉर्मेट ऑल्सो हार्क्स बैक. तो फॉर्मेट कौन सा है? द फॉर्मेट, विच इज द फॉर्मेट? देयर इज नथिंग बीइंग मेंशन्ड इन सेंटेंस 1 एज अ फॉर्मेट. Therefore, we will go to 4. Okay, unlike the horizontal newspaper strips, it reads vertically from top to bottom. So this is the format which is being talked about in 2, and therefore 3, 1, 4, 2 becomes the correct order. So this was an easier parajambal, I would say, among all. Let's go to the next one. Now this is a really ridiculous kind of a parajambal. I mean, I don't know what to call it. Okay, this kind of parajambals should not appear because इसमें सिर्फ एक ही चीज हमें पता है कि एक्ट ऑफ इमेजिनिंग वंस ओन चिल्ड्रन 2 और 1 कनेक्टेड. सिर्फ ये पता है, बिकॉज ही सेइंग द एक्ट ऑफ इमेजिनिंग one's own children on the receiving end of unmitigated horror is for most of us just that, an act of the imagination, but it should be a call to arms. और उसमें ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं. If we instigate or participate in abuse, or if we turn a blind eye to it, how will we be remembered? How will the smallest human among, so ये humans को लिंक किया गया children से. ओके, सो इसके पहले 2 के पहले उसने 4 लगाया और उसके पहले उसने 3 लगाया. If we instigate or participate in abuse, how will we remembered? We will remembered. How will the smallest? So I don't know. I don't know what to say. But इस तरह के पैराजम्बल है वो illogical होते हैं, and they don't deserve to be there. But anyway, whoever has created this in all his or her wisdom has put this. So इसके ऊपर मेरे को मतलब I would kind of not really take this too seriously. I don't know. Did anybody get this right? Anyone? No, Yes, sir. sir. Hmm? Okay. एक आध yes आए किसी के? Okay, very good. So whoever got it right, very good, excellent. Keep it up. But at least I left it. I didn't even attempt it. ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या कहना चाह रहा है. सिर्फ 2 और 1 का एक लिंक था. Then how did these two fit in? So it's okay, fine. ऐसा होगा. Okay, there will be some questions even in actual cat. You will find 1 or 2 एक आध पैराजम्बल ऐसा आ जाता है जो कि कुछ ज्यादा सेंस मेक नहीं करता. पैराजम्बल इज, एज आई बीन सेइंग, नॉट अ वेरी good type of question.
still, and that too without the options. Okay, so that's ठीक है, तीन में से आपके अगर दो भी करेक्ट होते हैं तो यू शुड फील हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज तीन में से तीन इसको करना इज रियली, आई वुड से इट्स नियर नियर इम्पॉसिबल, एटलीस्ट इन कैट वैट में जो आते हैं इसको। ठीक है, तो आपको एक एवरेज लेके चलना है कि आपके तीन में से दो करेक्ट होते हैं तो यू शुड फील ऑल राइट अबाउट इट। लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। दिस वाज अ लिटिल मोर चैलेंजिंग। यहाँ पे to know something is one thing, but to know it with others, know that others know it, and know that they know it, that you know another thing altogether. तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें कि एक क्लू हमें मिलता है, इन कोग्निटिव साइंस वी कॉल दिस कॉमन लैंग्वेज, कॉमन नॉलेज। नाउ व्हाट इज दिस? इज इट व्हाट इज रिटन हियर? बिकॉज अगर ये टू पे नहीं आता ये वाला सेंटेंस, तो ये जो दिया हुआ है इसके जस्ट पहले, आई नीड टू नो दैट यू नो आई एम विलिंग, इज दिस कॉमन नॉलेज? तो ये लग नहीं रहा कि इस चीज को वो कॉमन नॉलेज बोलेगा। willing, okay, willing, this is, I know, need to know that you know I'm willing, I need to know more than I say I'm willing, this is definitely not be, this will not qualify as being a common knowledge. So ये ठीक है, to know something is one thing, but to know it with others, know that others know it, know that they know that you know, is another thing altogether. In cognitive science we call this common knowledge because इसमें सब लोग इन्वॉल्व है, आप भी जानते हो, दूसरे भी जानते हैं, दूसरों को पता है कि आप जानते हो, आपको पता है कि वो भी जानते हैं, उन्हें भी पता है कि और कोई भी जानता है। So all of this thing is common knowledge. Therefore, two is the right place where this would come. All right. हाँ, कुछ पूछ रहे थे? Anybody has a question? Okay. Okay, let's look at this one. अब देखो इसमें this was easy, I would say. Okay, this was an easy para summary. Do you agree or not? Yes, sir. Yes, sir. Easy para summary है, इसमें बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं है। आपको इसमें साफ साफ उसने बता दिया है कि दो चीजें बताई गई हैं कि मैरिटल स्ट्रेस जो होता है वो अनहेल्दी होता है। मैरिड पीपल टेंड टू बी हेल्थियर इन लॉन्ग, बट न्यूअर रिसर्च adds an important caveat, means condition, so quality of the marriage. Couples that enjoy good relationship are likely to share common interest, and because marital stress logically enough is not good for one. Happily married women have poor blockages, and happily married couples are less likely to suffer heart. So marital relation is a factor important enough to be considered in case of heart disease. एंड सिंस द रिलेशनशिप बिटवीन कपल, ये क्या है, क्योंकि इसमें ये भी बात नहीं करी है कि कॉमन इंटरेस्ट वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट हार्ट डिजीज, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मोस्ट हार्ट डिजीज आर ड्यू टू स्ट्रेस, ओके, एंड मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस इज ड्यू टू द प्रॉब्लम्स ऑफ बिटवीन स्पाउसेस, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो ये गलत हो गया। हैप्पीनेस इन मैरिज मैटर्स एज मैरिटल स्ट्रेस इज हेल्दी एंड हैप्पी मैरिजेस कैन बी बिल्ट बाय शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट। दिस इज अ करेक्ट समरी एंड इजी टू स्पॉट। सो दिस वाज अ इजी क्वेश्चन। ऑलराइट, ये थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग था, थोड़ा लंबा भी था। The global debate on climate change has become more realistic and nuanced. Gone are the old caricatures of bleeding heart liberals on one end and staunch climate science deniers on the other. तो ये कह रहा है कि जो पहले ग्लोबल डिबेट होते थे क्लाइमेट चेंज पे, वो इतने रियलिस्टिक और नुआंस नहीं होते थे। ओल्ड कैरिकेचर्स, मतलब पहले क्या होता था कि एक तरफ हम दिखाए देते थे कि ब्लीडिंग हार्ट लिबरल्स, मतलब जो लिबरल्स होते हैं तो ऑल फॉर क्लाइमेट चेंज, वो अपने ब्लीडिंग हार्ट से उनके, और दूसरी तरफ क्लाइमेट साइंस डिनायर्स होते थे, ट्रम्प जैसे लोग होते थे जो कहते थे कि कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। Activists, academics, and think tanks focused on climate action have been supplemented with the heads of state, regulators, and CEOs of some of the largest countries who know they must publicly acknowledge climate concerns to pacify stakeholders. तो जो ये लिबरल एंड पर था उसमें अब ये सब लोग आ गए, एक्टिविस्ट, एकेडमिक्स, थिंक टैंक्स, जो पहले भी थे, सॉरी ये तो पहले भी थे लिबरल्स, लेकिन उनके पास में अब हेड्स ऑफ स्टेट भी आ गए हैं, रेगुलेटर भी आ गए हैं, और सीईओ भी आ गए, क्योंकि सीईओ को दिखाना है अपनी कंपनी के स्टेक होल्डर्स को कि हम कुछ तो कर रहे हैं क्लाइमेट कंसर्न्स की। तो देयरफॉर दे आर आल्सो ऑन दिस साइड। ओके, तो जैसे दो साइड है, तो यहाँ पे लिबरल्स थे पहले और यहाँ पे डिनायर्स थे। अब ये लिबरल्स की साइड पे अब आ गए हैं सीईओज, हेड्स ऑफ स्टेट, ठीक है, एंड रेगुलेटर्स। तो ये लोग भी अब इस साइड आ गए। और द स्केप्टिकल एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, ये था, ये स्केप्टिकल एंड है। However, is no longer the exclusive domain of unscrupulous business owners and unethical populists. तो ये यहाँ पे सिर्फ unscrupulous business owners ही नहीं है,
There is no shortage of people with strong analytical backgrounds from mainstream reach arguing we need to come to sober realization the window of effective climate change is closed. अब यहाँ पे कई लोग जो बहुत ही एनालिटिकल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं और काफी मेन स्ट्रीम वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यार अब कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते थे वो हो चुका, विंडो ऑफ इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन इज क्लोज, तो वो इस तरफ आ गए। दिस फेटलिज्म, ये फेटलिज्म वाली एटीट्यूड है, डिफर्स इन टोन फ्रॉम फ्लैट आउट क्लाइमेट डिनायर्स। तो क्लाइमेट डिनायर्स ये नहीं कहते थे, क्लाइमेट डिनायर्स तो कहते थे कि यार है नहीं, क्लाइमेट चेंज हो ही नहीं रहा। ये लोग कह रहे हैं नहीं, क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है लेकिन वो इतना हो चुका है कि हम कुछ नहीं कर सकते। But the rationality of new climate skeptics makes their argument more effective at squelching the will to find climate. तो ये जो आ गए हैं, ये जो पहले के स्केप्टिक्स थे, डिनायर थे, ये तो इरैशनल लोग थे, तो उनकी ज्यादा लोग बात नहीं सुनते थे। लेकिन जो न्यू क्लाइमेट स्केप्टिक्स आ गए हैं, जो कह रहे हैं कि विंडो ऑफ इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज बंद हो गई है एक्शन, उनकी रैशनैलिटी जो है वो अब इतनी स्ट्रांग हो गई है कि एक्चुअली जो विल है क्लाइमेट चेंज को फाइट करने की वो खत्म हो गई है। तो व्हाट इज ट्राइंग टू से कि ये पहले के जो डिबेट होते थे उसमें अब एक तरफ आ गए हैं सीईओ वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग आ गए हैं जो कह रहे हैं कि विंडो ऑफ क्लाइमेट एक्शन हैज इफेक्टिवली क्लोज्ड, एंड सिंस दोस पीपल आर वेरी रैशनल एंड पीपल विद गुड रीच, therefore this will to fight climate change looks like being squelched. So that is the summary in a nutshell. Now let's find out which option gives this. Despite high-profile parties now acknowledging climate concerns, rational individuals who now debate that fighting climate change is a lost cause are hurting chances of positive action. This looks all right. This looks all right. We can keep it. Climate change debate has become more complicated after a lot of well-known have turned skeptical. ये बहुत ही इसको गलत तरीके से और बहुत ही डिस्टॉर्टेड तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। ही इज नॉट एट ऑल सेइंग दैट जो रैशनल पर्सनालिटीज आ गई हैं वो लोग क्लाइमेट चेंज की चीज को लॉस्ट कॉज बना रहे हैं। That's a very important point here. वो तो बताया नहीं इसमें। With high-profile people joining the climate change debate on either side, the issue of whether climate change is needed has become more nuanced. The issue of whether climate action is needed, ये ऐसा है, not because high-profile people have joined on either side. This is a very wrong and grossly distorted view. It is because इस तरफ जो है, जो skeptical वाले लोग हैं, उनकी तरफ rational लोग आ गए हैं, तो वो चीज इसने नहीं बताई, तो ये भी गलत। Heads of state, regulators and CEOs have now taken the place of academicians and activists to argue against. ये बिल्कुल ही चेंज दैट मेकिंग द डिबेट मोर रियलिस्टिक, बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। डिबेट रियलिस्टिक नहीं होगा, डिबेट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। ओके, सो आई होप दिस वाज क्लियर। थोड़ा सा लंबा था, बट देन नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो नॉट जो इसमें अगर समरी में देखें तो पहला वाला थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था, पोस्ट मॉडर्निज्म वाला, और दूसरी समरी इजी थी, और तीसरी समरी वो मॉडरेट। नाउ बिफोर वी गो टू the RCs, let me show you कि इसमें एक अच्छा स्कोर क्या है इस वाली मॉक में। So you would have, whoever is here, and I hope they have already attempted it and got whatever marks they got. So you can kind of benchmark yourself against whatever statistics I'm trying to show कि आपके जो marks आए हैं वो where would that have put you in terms of percentile. So let me show you this. Okay, यहाँ पे हम इस section की बात कर रहे हैं। Okay, we are not talking about these two, ये DILR है और ये पॉइंट है। तो इसमें आप देखिए ये जो नंबर 1 किसी के दे दिए 58, तो ये एक्चुअली क्या होता है कि आई मीन डोंट गो बाय दिस। ओके, रियलिस्टिक जो होते हैं वो 10-20 में आते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये इनके फैकल्टी होती है बहुत सारी, वो भी देती है, कौन कौन लोग देते हैं, तो वो डोंट गो बाय दिस। ओके, दिस इज नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ। सो लेट्स से जो 10th आया है यहाँ पे, 10th जो आया है आउट ऑफ टोटल ऑफ 7708 पार्टिसिपेंट्स हैज गॉट 47 marks. Okay, so I would consider this as almost like a 100 percentile or 99.99 percentile. 10 से 20 वाले जो हैं वो 45 हैं। तो आप देखिए कि अब आपको परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट तो पता होगा ना। Do you guys know the percentile concept? How many people would get 99 percentile plus in this exam? जिनके स्कोर कितने होंगे? अगर 7708 लोगों ने दिया है तो यहाँ पे कहाँ तक 99 परसेंटाइल आएगा? एनीवन? आपके, लेट मी सी वेदर योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर ऑफ परसेंटाइल। बोलिए। क्वेश्चन नहीं समझा 77। मतलब सर। हाँ, क्वेश्चन नहीं समझे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये अभी हमने वीआरसी का जो मॉक दिया, इसमें आपके मार्क्स कितने होते तो आप 99 परसेंटाइलर या उससे सर ऊपर? 40 तक। हाँ, So I think हाँ
40, हियर यू मीन टू से, और 39 और 38, देखो 7708, ओके। सर रैंक 77, सर रैंक 77 तक 99 परसेंटाइल का कैसे मतलब चलेगा? हमारे से हाँ उतने लोग पीछे है ना, मतलब सर हाँ हाँ, टोटल तो जितने। इसमें से भाई, इसमें 7708 लोगों ने दिया है, सपोज 7700 लोग दे देते हैं, तो हाँ जिसकी 77th रैंक है वो 99 परसेंटाइल है, मतलब उससे नीचे जो 99% लोग हैं, तो हाँ 77 यहाँ पे कहाँ आएगी, यहाँ कहीं आएगी, हाँ सर 70 से 80 के 39, बीच। सॉरी। तो 38 और 39 के बीच में अगर आपके मार्क्स है, मतलब 38 भी मान लूंगा मैं, क्योंकि ये 10 लोगों को मैं हटाया था, ये जो 10 लोग है ना, इनको इसके यहाँ से तो हटा दिया। तो आई वुड स्टिल से दैट 37 38, इवन 37 38 अगर आपका स्कोर इसमें है, ओके, तो यू वुड हैव गॉट अ 99 परसेंटाइल। ठीक है, तो जिनके 37 38 है, दे कुड कंसीडर देमसेल्व्स टू बी 99 परसेंटाइलर। जिनके जैसे हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनके 43 भी है, 46 भी है, ओके, सो वी गॉट इन आवर ग्रुप 46 person also, we have got 43 also, and we got 40 41 also. So very good performance. You can very well see that you belong in 99.5 plus. ओके, जिनके 46 हैं वो तो ऑलमोस्ट 99.8 या 99.9 पे आ गए। तो और जो जो 43 वाले हैं वो भी 99.5 के ऊपर आ गए, और 40 वाले जो है वो भी आप समझो कि 99.5 के करीब ओवर कर। ठीक है, उसके बाद फिर आप अगर आएंगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, नाउ नीचे आप आते हैं, नीचे आते हैं हम, अगर आप लेट्स से अगर आप 150 करीब पे हैं तो आप 98 परसेंटाइलर हो, मतलब 34 33 जो है, ठीक है, 34 33 अगर आपका स्कोर आया है इसमें तो आप 98 परसेंटाइलर। ठीक है, देन इफ यू हैव गॉट 31 से, अब देखो इसमें 97 जो है वो आएगा आपका 250 पे 97 आ जाएगा, तो 31 पे आपका 97 आ जाएगा। उसके बाद में फिर आपका 96 वगैरह, 95 की अगर हम बात करें, तो 350 थ्री 400 करीब 28 29 पे आपका 29 28 पे आपका 95 परसेंटाइल है। ठीक है, और 90 परसेंटाइल की बात करें तो आपका यहाँ पे 23 24 के बीच में आप रहेंगे तो 90 परसेंटाइल है। तो जस्ट टू गिव यू एन इंडिकेशन, ओके, बिकॉज अभी क्या है कि आप लोगों के स्कोर ऊपर नीचे, किसी का 20 भी आया है, किसी का 21 भी आया है, किसी का 30 आया है, किसी का 32 आया है, तो यू शुड हैव ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ अ पर्सपेक्टिव हियर कि वेयर डू यू स्टैंड। ठीक है, कुछ लोग अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा हार्श और अपने ऊपर ज्यादा स्ट्रांगली भी आते हैं, कि हमारा तो बहुत खराब हुआ है। ऐसा नहीं है, कोई खराब नहीं हो गया, दिस वॉज नॉट अ वेरी इजी मॉक। इफ यू लुक एट द कंपैरेटिव स्कोर्स ऑफ प्रीवियस मॉक यू विल फाइंड दैट उसमें आपको यू वुड हैव नीडेड हायर मार्क्स टू रीच द सेम परसेंटाइल। यू एग्री और नॉट? आपने पिछली मॉक जो करी थी उसमें आपको ज्यादा मार्क्स पे ही इतना परसेंटाइल आया, यस सर। ध्यान है ना? यस। तो what I'm trying to suggest here is that there are a lot of people who get a little bit of they get upset or they get a little sad also कि हमारे तो कम हो गए, हमारी परफॉर्मेंस खराब हुई। ऐसा नहीं है, देखो ये क्या है, चलेगा, ऐसा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन चलेंगे। कोई सी डिफिकल्ट ज्यादा बना देते हैं, किसी कोई सी थोड़ी सी ऐसी बना देते हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। परसेंटाइल ट्रैक करना है, ठीक है, मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज टू ट्रैक आवर परसेंटाइल। ओके, तो आई थिंक लास्ट टाइम मे बी आई डिड नॉट शो दिस थिंग, तो अभी भी पिछली बार शायद मैंने नहीं दिखाया था जब एनालिसिस किया था। तो आप चाहो तो मैं पूछ लेना, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूँ। सो दिस इज वेयर वी स्टैंड, सो आई होप इट इट क्लियर्स इफ दैट वाज देयर इन योर माइंड। ओके, एनी क्वेश्चंस सो फार? आज बहुत चुप है सब लोग, यार कोई ज्यादा बोल नहीं रहा है कुछ, क्या? हाँ, यस सागर। सर जैसे आपने ये वाला चार्ट दिखाया तो ये यूजुअली मतलब जैसे हर टेस्ट में वेरी तो करता ही है, मतलब हर हम्म, एक टेस्ट में। तो सर हम्म। अप्रोक्सीमेटली कितना वेरी करता होगा, जैसे मतलब अरे कर अगर। जाता है यार, ओके। कर जाता है बहुत देरी कर जाता है। ये जो है ना, मतलब see, there are- ये जो मॉक्स है इनके, ये कोई आपको मतलब आप बहुत लॉजिकल मत समझो, ये वेरी कर जाता है। कभी इजी बन जाता है, कभी इनसे कभी डिफिकल्ट बना देते हैं, कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो आप मतलब यू कांट रियली से कि क्या है। अब हाँ, अगर आप अब जैसे सपोज करो कि मैं इसको एक्चुअल से कंपेयर करूँ ना, तो ये वाला जो स्कोर है ना, ये इस बार जो कैट 22 था उसका जो एक्चुअल था वो आप समझो कि ये मिरर करता है उसको काफी हद तक, बहुत हद तक।
क्योंकि उसमें भी अगर आप 37-38 के करीब आपके इस कैट 22 में वीआरसी में आए थे, तो आपके 98 और 0.5 से 99 के बीच में आए। ठीक है, तो ये काफी कुछ जो ये परसेंटाइल निकल के आया ना इस वाली मॉक में, ये यस मिरर कर रहा है एक्चुअल कैट। उसमें भी आपको अगर पता हो तो कैट जो स्लॉट 1, 2 और 3 था, उसमें भी बहुत वेरिएशन था। तो 1 में उन्होंने 6-6 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए लोगों को, और 3 से एक्स्ट्रा 6-6 मार्क्स उनसे छीन लिए गए, क्योंकि वो जो डिफिकल्टी लेवल था उनको लगा कि थर्ड वाले का इजी है और फर्स्ट और सेकंड वाले ज्यादा डिफिकल्ट, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा उन्हें लगा। तो उन्होंने उनको 6-6 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए। तो जो लोग जिन्होंने आके अपना रिस्पॉन्स शीट से परसेंटाइल निकालने की कोशिश की थी, उसके बाद दे वर वेरी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज जब उनके स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ गए। यस सर। Okay, so Chetan has a questionnaire accuracy 95%, but average time is 18 minutes. How to tackle the problem? देखो, टैकल द प्रॉब्लम यही है कि आपको बहुत ही सी यू हैव टू सी कि एक एक पैसेज में आपको कितना टाइम लगाना है, वो आपको एक फिक्स करना पड़ेगा। यू कैनॉट लेट इट रन काइंड ऑफ। और दूसरा क्या है कि एक्यूरेसी 95% बहुत ज्यादा है। एक्यूरेसी और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का भी एक ट्रेड ऑफ होना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर टू accurate and not attempting enough number of questions, then you are missing out. तो आपको अपनी एक्यूरेसी 80 to 85% के बीच में टारगेट करनी चाहिए। उससे अगर आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग। सपोज करो आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, उसमें से 2 सही होते आपके और 4 गलत होते, तो 2 सही होते तो आपके 6 मार्क्स मिल जाते, और 4 गलत होते तो 4 कट जाते सपोज, तो यू वुड हैव स्टिल गॉट 2 मोर। तो आपने वो चांस नहीं लिया। ओके, सो यू लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू गेट एटलीस्ट दोस 2 मार्क्स। सपोज 3 राइट 3 रॉन्ग हो जाते तो आपको 6 मार्क्स मिल जाते, राइट। तो एक्यूरेसी को आपको एक लेके चलना है कि 80 to 85% एक्यूरेसी इज गुड, 80% इज गुड, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़े से हमारे थोड़े से बढ़ने चाहिए, क्योंकि अगर 18 मिनट्स में एक पैसेज होगा तो आपके अटेम्प्ट 10-12 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। 10 मुश्किल से 10 अटेम्प्ट या 12 अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं करने, 12 अटेम्प्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, लेकिन 16 अटेम्प्ट करीब आप करोगे, 16-17 तो ठीक है। देन यू आर वेल विद इन दिस जोन ऑफ 99। Experimented by doing BA first, then RC ended up giving a lot of time in BA। नहीं, लॉट ऑफ टाइम नहीं, देखो जो भी आप कर रहे हो ना, आपको अपना टाइम का बहुत केयरफुल ट्रैक रखना है। डोंट लेट अननेसेसरली, जैसे अब मैंने आपको माइस वाला बताया, वो माइस वाला करने में मुझे ज्यादा टाइम लग गया, वो तो ऑफकोर्स मैं एंड में कर रहा हूँ, एंड आई हैड स्टिल टाइम, सो आई कुड स्टिल डू इट, अदरवाइज आई वुड हैव लेफ्ट इट। क्योंकि उसमें आपको बहुत केयरफुली, जो एक दो क्वेश्चन उसके तो ऐसे थे कि आपको बहुत केयरफुली इवेलुएट करना पड़ेगा, और फिर भी गलत हो रहे। तो पॉइंट इज कि आपको ये देखना है कि यार कौन से क्वेश्चन में टाइम लगाना है, जहाँ पे कुछ आगे निकलने की कुछ एक्सपेक्टेशन हो। ये नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग टू गिव मोर टाइम, वी आर गिविंग मोर टाइम, एंड इवन दो वी आर नॉट श्योर कि ज्यादा टाइम देने से वो सही होगा भी नहीं। तो डोंट थ्रो योर गुड टाइम आफ्टर बैड टाइम, मतलब डोंट थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड मनी बोलते हैं। तो आपको ये नहीं है कि और वीए में आपको बहुत केयरफुली 2-2 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं, समरी में 2.5 मिनट दे दो, बट डोंट गिव मोर देन 2 मिनट्स टू एनी जंबल, ओके, बिकॉज इट इज नॉट वर्थ इट, वो फिर भी गलती होगा। तो 2 मिनट तो बहुत है, हद से ज्यादा जंबल में। समरी में आप 2.5 मिनट दे सकते हो। तो इस तरह से करना है कि बहुत क्लोजली आपको एक एक क्वेश्चन को ट्रैक रखना है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। लेट मी क्विकली नाउ रन थ्रू एनी अदर डाउट, किसी को तो पूछ सकता है, और मैं अदरवाइज विल क्विकली रन थ्रू दिस। इसमें आप देखो कि ये मैंने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे लेबोरेटरी और इनकी बात बताई गई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द मेन व्यू पॉइंट, तो ये मेन व्यू पॉइंट इसने एंड में बताया कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यहाँ से आपको मेन पॉइंट मिल जाएगा। And the various innovation centers have a growing number of somethings to their name. They have suggested some sensible policies. Reforming government is hard and often boring work. Innovation labs are making it bit faster and more interesting. So it ends on a positive note. Okay, it ends on a positive note. So and it is not like this also. It has soared in recent times. ऐसा कोई unequivocally भी उसको support नहीं कर रहा है. And this is ending on a negative form or lose out the latter. All that. Or innovation is the only hope. तो ये तो बिल्कुल ही गलत है. Okay, and this was the right answer. This was analytical. Okay, we discussed sticking plasters on cancer. देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये कह रहा है कि क्या करते हैं, कहाँ गया उसका स्टिकिंग प्लास्टर्स ऑन कैंसर।
हाँ ये politicians can also sometimes treat the existence of innovation center as a justification carrying on with business as usual anyway. ये कह रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो इनोवेशन को खराब किल कर देती है। और कई बार पॉलिटिकल विंड जब चेंज होती है, मतलब बीजेपी गई कांग्रेस आई, कांग्रेस गई बीजेपी आई, तो इसके कारण चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं, सेंसिबल चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं। मतलब अगर किसी गवर्नमेंट ने अच्छा प्रोजेक्ट चला रखा है तो उसको रिवर्स कर देता है। न्यूयॉर्क न्यू मेयर इज अनडूइंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट एक्स मेयर इंप्लीमेंटेड, ये उसका एग्जांपल दिया उसने। Politicians can also sometimes treat the existence of innovation sector as justification for carrying on with business as usual everywhere. और कई बार क्या करते हैं कि बोलते हैं यार इनोवेशन सेंटर तो इनोवेशन कर रहा है ना, हम तो बिजनेस एज यूजुअल ही करते रहे, व्हाई शुड वी बॉदर टू चेंज। व्हाट इज मोर, सच सेंटर्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम पुटिंग स्टिकिंग प्लास्टर्स ऑन कैंसर। तो इसको हमें ऐसा समझना चाहिए कि कैंसर जो है वो खाली वो स्टिकिंग प्लास्टर से ठीक नहीं होगा। तो मतलब आपने कैंसर तो आइडेंटिफाई कर दिया है, लेकिन आपने उसको कैसे ट्रीट करना है, ये तो आप एक सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हो। यू आर नॉट गेटिंग टू द रूट ऑफ द कॉज और द प्रॉब्लम। तो ये आपको जो ऑप्शन है ये आपको यहाँ पे मिलेगा कि दे आर लुकिंग एट द करेक्ट प्रॉब्लम्स बट आर फेलिंग टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज दैट इज हिंडरिंग देम फ्रॉम प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये यहाँ पे बी करेक्ट हो गया। यस सागर। श्योर, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन भी मतलब मेरा मैंने बी मार्क किया था, बट जब मैं वापस जा रहा था पैसेज पे तो कोई ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं मिल हाँ रहा था मतलब हाँ इसे चेक करने का। तो करेक्ट। सर मैंने जनरल टर्म में ले लिया था कि मतलब पुटिंग स्टिकिंग प्लास्टर्स ऑन कैंसर वाला जनरल टर्म्स में ले लिया था, तो उसके हिसाब से भी मैंने बी मार्क कर दिया था। तो वो ठीक करेक्ट। है करना? हाँ ठीक है, इसको देखो आप इसको वैसे भी देख सकते हो कि इसको हम एलिमिनेशन से करते हैं, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू कवर अप प्रॉब्लम एज दे फियर पब्लिक्स wrath, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यू कैन सेफली रूल इट आउट। Value the public and hence want to find immediate solutions to the problem, but they come up with somewhat less effective solutions. ये एक आप ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि स्टिकिंग प्लास्टर फॉर कैंसर, तो इट इज लेस इफेक्टिव सोल्यूशन, बट इज इट एट ऑल इफेक्टिव? ये कैंसर सर को क्योर करने के मैंने लिए, भी ऐसे एलिमिनेट किया है था। ना, कैंसर को क्योर करने के लिए इन एनी बिट इफ स्टिकिंग प्लास्टर इज इफेक्टिव, नॉट एट ऑल। ठीक है। और दूसरा, हेंस वांट टू फाइंड इमीडिएट सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, ऐसा भी कहीं पे भी उसने सजेस्ट नहीं किया है, तो इसलिए इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। Don't want to spend much of their budget on innovation and hence try to find much cheaper solutions. ये तो लिटरली ले लिया उसने कि स्टिकिंग प्लास्टर चीपर होते हैं, तो ये गलत है। इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट करके देन आई वाज एबल टू कोरिलेट विद दिस कि आपने स्टिकिंग प्लास्टर आप इसलिए चिपका रहे हो क्योंकि दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये जैसे आप सिम्टम को क्योर कर रहे हो, आप डीप उसकी रूट को कॉज पे नहीं जा रहे, तो ऐसे करके आप करोगे तो अदरवाइज दिस वाज लिटिल चैलेंज। दिस वाज वेरी इजी, ओके, दिस वाज वेरी इजी, तो इसलिए मैं ज्यादा आपको डिस्कस नहीं करूंगा। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज दिस वाज okay. Now, this in this particular thing, he's talked about language, how it differentiates humans from animals. Okay, and what could be the reason that led to the emergence of language. ठीक है। तो ये सेकंड पैराग्राफ में तो इसने ये बताया कि एनिमल्स भी जो है वो अपने आप आपस में जेस्चर्स के थ्रू दे कन्वे, बट नन कैन यूज दीज डिस्प्लेस टू कन्वे अ सेंटेंस लाइक आई किक द बॉल, लेकिन वो इस तरह से चीजें नहीं कन्वे कर सकता। तो लैंग्वेज इज कंसिडर्ड अ ज्वेल इन ह्यूमन सुपीरियोरिटी। Being unique, language is a siren to Darwinians teasing us how it arose. Uh, Darwinian theory of okay evolution होती है natural selection। तो कि how did human language जो survive, ये जो है यूनिक और पावरफुल है, तो कैसे इसने हमें हेल्प किया हमारे एवोल्यूशन और किस तरीके से आई। तो ये इसका इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है इसने एक कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ। तो सेकंड पैराग्राफ में बताया गया कि लैंग्वेज इज यूनिक, एंड थर्ड में बताया गया कि हाउ डिड इट इवॉल्व। जो ये कॉर्बालिस जो है, इसने कहा कि मिरर न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे, ओके, वो लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये इको करते हैं एक्शन इन ऑब्जर्वेशन। मंकी जो है जब एक कोई चीज को ग्रास करता है, दूसरा एनिमल भी ग्रास करता है, तो उसके मिरर न्यूरॉन्स फायर कर जाते हैं। तो ये देयर इज एन एको, देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन पार्ट्स ऑफ मिरर न्यूरॉन एंड टू areas in brain's left cortical, the cerebral cortex that are associated language in human production, broca's and techniques। तो उसके बाद एक और उसने ये रीजन बताया कि जो मिरर न्यूरॉन है और दूसरे जो दो एरियाज हैं जो कि लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके बीच में ओवरलैप। तो एज पर कॉर्नवालिस मिरर न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंग्वेज। तो सेकंड पैराग्राफ में ये बताया। लेकिन थर्ड में बताया गया कि मिरर न्यूरॉन वाली थियोरी के भी डिट्रैक्टर्स हैं, मतलब कोई क्रिटिक्स हैं, ठीक है। लेकिन कॉर्नवालिस के लिए मिरर न्यूरॉन्स ने पॉसिबिलिटी रेज कर दी कि दे इवॉल्व विद अ सिस्टम दैट बैक इन आवर मंकी डेज वाज स्पेशलाइज्ड फॉर ग्रास्पिंग थिंग्स, क्योंकि इसने इसको
मिरर न्यूरॉन्स को ग्रास्पिंग जो कैपेबिलिटी होती है मंकीज की, उससे रिलेट किया। तो इसने कहा है कि हमारे जो मिरर न्यूरॉन्स है ये भी दूसरे एक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पॉइंटिंग। और बच्चे लोग जो हैं, तो अगर कोई पॉइंट करता है तो मिरर न्यूरॉन्स फायर हो जाते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल लेके इसने कहा है कि जो हमारे बचपन में बच्चे पॉइंटिंग से सीखते हैं कुछ भी, तो ये भी एक उसका प्रूफ है या एक तरह से एविडेंस है कि मिरर न्यूरॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं लैंग्वेज के लिए। और दूसरा ये भी बताया गया कि जो सोशल डिसऑर्डर होते हैं ऑटिज्म, उसमें ये डिसरप्टेड हो जाता है मिरर। और फाइन कंट्रोल ऑफ फेशियल मसल रिक्वायर्ड फॉर स्पीकिंग शेयर द सेम कॉर्टिकल सर्किटरी विद द रीजन दैट कंट्रोल जेस्चर्स। तो ये इस पैराग्राफ में इस चीज को सपोर्ट करने की बात की है कि मिरर न्यूरॉन्स जो हैं वो कैसे लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो इसके डिट्रैक्टर्स हैं, लेकिन कोरबलिस जो है वो इन आर्ग्यूमेंट से अपने उसको सपोर्ट करता है। स्टिल व्हाट इज रॉन्ग विद द व्यू दैट लैंग्वेज ग्रू फ्रॉम होमिनिड एंसेस्टर्स कैपेसिटी फॉर वोकलाइजेशन। लेकिन अब एक व्यू ये भी है दूसरों का कि वोकलाइजेशन जो है हमारी कैपेसिटी, एक जो हमारे एंसेस्टर थे उनकी थी, और लैंग्वेज क्या उससे नहीं आई है। उस व्यू में क्या गलत है? तो डार्विन ये कहता था कि कैपेसिटी फॉर कॉम्प्लेक्स वोकल लर्निंग हैज डीप एवोल्यूशनरी रूट्स एक्सटेंडिंग एज फार बैक एज कॉमन एंसेस्टर। तो डार्विन जो कह रहा था कि हमारी जो लैंग्वेज की कैपेबिलिटी, वोकलाइजेशन जो हमारी कैपेसिटी थी उससे लेड है, और उसके डीप एवोल्यूशनरी रूट थे उसमें। लेकिन कोरबल इसको काउंटर करता है कि जो प्राइमेट मतलब मंकी एप्स के जो वोकलाइजेशन होते हैं वो उनके कंट्रोल में तो होते ही नहीं है। वो तो एक नर्वस टिक जैसे एमर्ज करते हैं। दे आर इनवॉल्यूंटरी, मोर क्लोजली कनेक्टेड टू एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन than to deliberate exchange of information. So here Corvallis is countering Charles Darwin's view. Vervet monkeys famously have three different alarm calls corresponding to this, but alarm call does not involve give and take of language, gestural or otherwise. तो उसने ये वर्बेट मंकीज का एग्जांपल दिया कि हो सकता है चार्ल्स डार्विन और उसके जैसे लोग वर्बेट मंकीज का एग्जांपल देते हो कि उनके पास में तीन टाइप की अलार्म कॉल होती है, तो वो अलार्म कॉल को हम लैंग्वेज की जैसा नहीं समझ सकते। So again, in this paragraph, what we are trying to do is to counter the theory that human की language capacity vocalization जो था उससे आई। But okay, one suspect that many, such as primatologists and this guy, will find Corbelis assessment of primate vocalization harsh. कुछ कुछ लोगों को इसका जो असेसमेंट है कि ये अपने कंट्रोल में नहीं है और ये तो ऐसे ही हो जाता है, ये इसको हार्श है। लेकिन दूसरे जो है प्राइमेटोलॉजिस्ट वो शेयर करते हैं। So passage tries to evaluate what could be the factor behind the emergence of language. Corvallis is of the view that this is because of mirror neurons, whereas some primatologists and other people like Charles Darwin, they think that it is because of the human ancestors' capacity for vocalization. But Corvallis tries to show that it is not through that, because vocalization की जो हमारी capacity है वो involuntary है, it is not under our control. Therefore, it is not because of that. So ये है basically इस passage. Moderate, I would say, not easy, not difficult, but it could be moderate. Which of the following choices correctly explain the relationship between second and third? तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि सेकंड में यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज है और थर्ड में पॉसिबल कॉज। Third para provides an explanation about the conclusion. So it is not providing the explanation, and it is not at all contradicting the content. And author is not refuting that human का language capability is unique. Okay, तो ये ऑप्शन में तो कहने की कोशिश कर रहा है कि author is refuting it. That's wrong. All of the following have been mentioned in the second para of the passage except language set से ये तो दिया हुआ है, animals cannot convey ये भी दिया हुआ है, gestures are not sufficient as a source of communication, hence languages are also required. ये बोला हुआ है इसमें कि नहीं बोला हुआ है? बोला हुआ है, देखिए आप सेकंड पैराग्राफ में। And some through gestures can this, but none can use these displays to convey a sentence like this. Okay, तो ये बोला हुआ है इसमें, ये नहीं बोला हुआ है तीसरा जो दिया हुआ है चौथा। लैंग्वेज इज एन instrument of action as much as a channel for dispersal of information, while gestures help to express feelings in a powerful way. यहां तक तो ये ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये बोला था। तो मतलब ये आंसर है, सॉरी, एक्सेप्ट ये आंसर। Which of the following correctly represents a feature or function of mirror neuron? तो ये मिरर और उसका साफ साफ पहला वाला आंसर है, mirror neurons are affiliated with language formulation.
ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ब्रेन राइट नहीं है, वहां पे लेफ्ट बोला हुआ है, so this is wrong. This is a wrong thing. In children, they help in making gestures for indicating their moods and help in intertwining language with their experiences. ऐसा ऐसा कहाँ लिखा है कि mirror neurons help in making gestures? वो तो बोल रहा था कि जो पॉइंटिंग वाली बात है वो मिरर न्यूरॉन से होती है, तो मेकिंग जेस्चर्स एंड पॉइंटिंग इज डिफरेंट. सो देयरफॉर दिस इज मिरर न्यूरॉन्स फायर व्हेन एनिमल ऑब्जर्व देयर ह्यूमन फ्रेंड डूइंग द सेम एक्शन. नहीं है, वो ग्रास्पिंग वाली बात कर रहा है, इसमें ग्रास्पिंग वाली बात नहीं बताई है इसमें. Which of the following captures the essence of the statement one suspects? तो ये तो साफ है, इसमें यही कह रहा है कि जो कुछ लोग हैं. सर हाँ डी में बोलिए. यू फ्रेंड्स भी तो गलत है ना, वो क्या अदर चीज? एनिमल बोल रहा था शायद। हाँ, अदर एनिमल टू. करेक्ट करेक्ट, ये भी गलत है, ये भी गलत. आ, तो वन सस्पेक्ट्स, ये जो कह रहा है लास्ट में, वन सस्पेक्ट्स दैट दे विल फाइंड प्राइमेट वोकलाइजेशन हार्श, मतलब कुछ लोग उससे एग्री नहीं कर रहे. ओके, सो ये सी में दिया हुआ है. According to the author, Corbelis assessment of communication primates can be unacceptable to some primate animals. यहाँ पे ये ठीक है, इसका ये ठीक है, इज नॉट एज एफिशिएंट एज लैंग्वेज, इज ओके, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि बाकी के लोग इससे एग्री नहीं करेंगे. ये करेक्ट यहाँ तक है, लेकिन ये नहीं इसमें आया कि बाकी के लोग इस चीज को एग्री नहीं करते हैं. ओके, आई होप क्लियर. सर बी एक बार बता दो। बी बॉम्बे. यस सर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, देखो यार, कहाँ ऑथर थोड़ी बोल रहा है ये. देखो, ये पैराग्राफ में क्या बोला उसने, कॉर्बालिस ने, कि जो लैंग्वेज है वो वोकलाइजेशन की कैपेसिटी से नहीं आएगी, क्योंकि वोकलाइजेशन जो है वो जानवरों के वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है. वोकलाइजेशन मतलब क्या होता है? वोकलाइजेशन मतलब कि कुछ अंदर से आवाज निकालना, साउंड निकालना. तो साउंड जो बोल रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि जब चाहे वो साउंड निकाल सकते. वो साउंड उनके इनवॉलंटरी कंट्रोल में होती है, मतलब इनवॉलंटरी होती है, निकल जाती है. therefore it is not a good language, it cannot be called a language. ओके, तो ये कुछ लोग जो है दूसरे जो प्राइमेटोलॉजिस्ट हैं, ये इस चीज को हार्श समझ रहे हैं कि ये जो बोल रहा है कि प्राइमेट वोकलाइजेशन इनवॉलंटरी है और उनके कंट्रोल में नहीं होता, तो भाई ये तुम हार्श है, ये तुम्हारा सही नहीं है असेसमेंट. तो ये जो है वन सस्पेक्ट्स और हार्श, यहाँ तक बता रहा ना हमको, वन सस्पेक्ट्स और हार्श, तो इसमें इसने ऑथर ने अपनी बात थोड़ी करी है. उसने तो कहा था कि बहुत सारे प्राइमेटोलॉजिस्ट, जैसे ये सारे हैं, फ्रांस डिवॉल, इन लोगों को इसका असेसमेंट हार्श लगेगा. ऑथर को थोड़ी, ऑथर अपना व्यू थोड़ी दे रहा है कि हार्श है कि नहीं, वो तो दूसरों के व्यू दे रहा है, तो इसलिए इसमें बी नहीं हो सकता. यहाँ तो लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू द ऑथर, राइट. सर वहाँ पे वन सस्पेक्ट लिखा हुआ तो मेरे को लगा कि वो ऑथर नहीं, का पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बाद अरे फिर नहीं 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 नहीं, वन सस्पेक्ट्स दैट मेनी विल फाइंड, वन सस्पेक्ट्स दैट मेनी विल फाइंड, मतलब कि यस ऐसा हाँ। लगता है लोगों को कि बहुत सारे पैरामेटोलॉजिस्ट को ये हार्श लगेगा. इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऑथर को भी लग रहा है. यस सर। भाई अगर मैं बोल रहा हूँ कि वन सस्पेक्ट्स दैट मेनी विल एग्री विद दिस, तो मैं अगर बोलूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इस चीज से एग्री कर जाएंगे, तो इसका मतलब है क्या, मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी एग्री कर जाऊंगा. सपोज आई नो एम सर। सेइंग, अगर सपोज करो इवन ऑथर वन की जगह पे खुद का नाम लेता, आई सस्पेक्ट दैट मेनी विल फाइंड कॉर्बोलिस असेसमेंट हार्श, तो डज इट मीन दैट ऑथर विल आल्सो फाइंड इट हार्श? नॉट नेसेसरी. इट इज नॉट स्टेटेड हियर, राइट. आई होप नाउ यू सी द डिफरेंस. यस सर। ठीक है, ग्रेट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. अब देखो, ये जो था ये मेरे को मतलब पैसेज कुछ, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं समझ नहीं आया, समझ आ गया, लेकिन इसमें कुछ जो है ना, नथिंग टू मच. आई मीन आई जस्ट गिव यू द ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ इट, कि इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे एक माइस है, तो वो माइस जब फैटी और शुगरी फूड्स खाता है, तो उसके ब्रेन के अंदर जाके कुछ ना कुछ जो न्यूरॉन्स होते हैं वो फायर, वो कुछ सिग्नल देते हैं. ओके, तो जब वो नॉर्मल डाइट खाता है तो वो उनके उनकी एक्टिविटी बढ़ी हुई रहती है, एंड दे सिग्नल व्हेन टू स्टॉप. लेकिन जब वो मीठी चीजें खाता है, फैटी डाइट खाता है, तो वो जो सिग्नल्स होता है वो सिग्नल फिर आते नहीं है, मतलब एक, देन इट कैन नॉट गिव द सिग्नल टू इट बॉडी टू स्टॉप ईटिंग, और उसके कारण वो फिर खाते चले जाते हैं, और उसके कारण फिर वो ओबीस हो जाते
तो उसको ऑथर ने इन्होंने इसको स्टडी किया ग्लूटामेट के जरिए 2 फोटोन माइक्रोस्कोप यूज कर, और उसमें अंदर एक फ्लोरेसेंस वो डाल दिया जिससे कि दे कैन सी दैट व्हेन द न्यूरॉन्स आर फायरिंग व्हेन दे आर नॉट। तो उसके बाद में उनको आ, ये समझ में आ गया कि जो सेल्स होते हैं, तो जब उसको आप जिन माइस को शुगरी डाइट देते जा रहे थे, तो उनके सेल्स जो है वो लेस लाइवली बनते जा रहे थे, और 12 वीक के बाद में द ग्लूटामर्जिक cells were roughly 80% less active in response to the sugar drink. So that means they were able to identify the correlation between the activity levels of neurons and the fatty diet. ये तो इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन क्या ये उसी के कारण हो रहा है? मतलब उसके कारण अब क्या हो गया कि स्टडी डज नॉट डिस्टिंग्विश विच चेंज द न्यूरल एक्टिविटी। अब इंपॉर्टेंट यहां से चालू हुआ, अ फीचर ऑफ द डाइट और द वेट गेन इटसेल्फ। अब ये उनको जैसे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी एक्टिविटी, सेल्स जो है उसकी एक्टिविटी कम हो, तो क्या ये इसलिए हुई कि वो ओबीस हो गए, या वो डाइट के कारण ही कि मीठा खिलाओगे तो वो कम हो जाएगी, या वेट गेन हुआ तो कम होगी? कॉज क्या है? इट डजंट प्रूव, ऑल्सो डजंट प्रूव द चेंज इन ब्रेन एक्टिविटी इटसेल्फ कॉज द एनिमल्स टू ओवर ईट एंड गेन वेट। तो खाली ब्रेन एक्टिविटी के अंदर चेंज है, उसी कारण एनिमल्स ने खाया है और गेन वेट किया, या कुछ और है? हो सकता है कि टेस्ट है, न्यू डाइट माइट हैव प्रॉम्प्टेड माइस टू ऑफ देयर कैलोरी, हो सकता है टेस्ट अच्छा लगा। आप एक चीज समझो कि कोई अगर इंसान मीठी चीज को बहुत ज्यादा खा रहा है और उसके न्यूरॉन्स को और उसकी एक्टिविटी को अगर असेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ये जैसे जैसे आदमी हाई शुगर और फैटी डाइट खाते जाता है, तो इसके ब्रेन की जो एक्टिविटी, न्यूरॉन की एक्टिविटी कम होती जाती है। तो क्या ये रिजल्ट उसके ओबेसिटी के कारण हो रहा है, या उसकी सिंपली ईटिंग द डाइट के कारण? दूसरा, क्या इसका और कोई कारण हो सकता है कि वो खा रहा है ज्यादा मीठा? क्या इससे कोई डीलिंग कर सकते हैं कि ये जो इसकी जो एक्टिविटी है उसका कोई रिलेशन नहीं है, इसको तो सिर्फ टेस्ट अच्छा लगा है इसलिए वो खाए चले गए? ठीक है। Rodent chow is dry, salty, bland, grossness, high fat, no guides, usually taste like sugar cookie. Still, the reduced activity of glutamalate neuron might have perpetuated obesity in the mice by falling to tamp down their appetite even as their weight climbed. तो अब ये यहाँ पे इनकी स्टडी इनकॉन्सिक्वेंशियल है। तो इफ अ फ्यूचर स्टडीज रिवील अ रिसेप्टर बेस्ड प्रेजेंट ऑन द सबसेट ऑफ न्यूरॉन्स बट एब्सेंट फ्रॉम मोस्ट अदर सेल्स। अब अगर हम एक रिसेप्टर लगा दें यहाँ पे दूसरे सेल्स से हटा के, दूसरे सेल्स में ना रखें और उसके ऊपर ही टारगेट करें विद ड्रग्स टू सिलेक्टिवली बम्प अप एक्टिविटी, लेकिन वो इजी नहीं हुआ क्योंकि स्ट्रांगली स्टिमुलेटिंग दीज इज अपेरेंटली अनप्लेजेंट। माइस इन द स्टडी अवॉइड इलेक्ट्रिकल रैप टू द एरिया। ये लिटरली लिखा हुआ है, इसको हमें फिगरेटिवली नहीं लेना, लिटरली नहीं लेना। ये फिगर, ये जो है ना, ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना हुआ है। So the approach will require a delicate tap on the appetite brake, not slamming it on with full force. ये फ्यूचर की बात की गई। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एड लीस्ट डेप्थ? तो अब इसमें ये बताना है कि इसमें सबसे कम इसमें क्या डेप्थ। तो स्टडी टू एक्सप्लोर द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट ओनली ऑन द सबसेट ऑफ न्यूरॉन्स दैट रेगुलेट ईटिंग। तो ये तो चाहिए हमें। ओके, ये तो इसमें लिखा ही है इसमें लास्ट में कि future study reveal a receptor present on the subset of neurons. Therefore, this is very much needed. Therefore, this is not the answer क्योंकि इसमें least depth बताना है। Study to explore whether the activity of glutamatergic neurons prevent overeating in lean mice. तो क्या ग्लूटामर्जिक न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है, क्या ये प्रिवेंट करती है ओवर ईटिंग? मतलब ये जो ऑथर बोल रहा है कि हमें दो चीजें हैं कि जो एक्टिविटी है, क्या इस एक्टिविटी से प्रिवेंट करेंगे वो ओवर ईटिंग को या नहीं करेंगे? तो दिस okay can be studied. Obesity related thing also can be studied. Study to explore the effect of increasing weight on the activity of glutamatergic neurons. तो क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ इनको कि ये इंक्रीज्ड वेट के कारण, ओबेसिटी के कारण है या किस कारण है, तो क्लियर नहीं हुआ। Study to explore the correlation between change in brain activity and overeating in absence of obesity. So ये जो है ये ऑलरेडी कर रहे हैं, दिस इज ऑलरेडी बीइंग डन। Okay, because we are already finding a change in brain activity तो हमको मिल रहा है, so therefore this will not add no depth, so this is not needed, so this becomes the answer. थोड़ा सा hazy question है, okay, not a very straightforward question, plus it needs a little bit of a समझने में आपको 2-4 मिनट लग जाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देना बेटर।
this will eat a lot of time. Okay, because as it is, the passage was a little dense, and on top of it, this was uh, quite tough. So ऐसे question को छोड़ देना better होता है. Which of the following best captures the reason for the author to feel that approach will require delicate time? देखो यहाँ पे क्या है, आपको A और C में से confusion हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे straight away उसने लिख दिया था कि mice don't like electric zaps, but then this was literal. It cannot be taken as literal. Okay, this has to be taken figuratively. इसका मतलब यहाँ पे electrical zap नहीं दे रहे. Okay, so इसलिए इसमें C correct answer है. Overstimulation of this neurons is unpleasant to the eyes. An experiment which establishes that mice increase their calorie intake and weight only when fed with high fat, tasty, and return to original levels weight and when fed with roja will not show that. It is only not only neurons that control appetites. ये किसने किया? Pratha, did you do that? Yes, sir. Sir, I marked D answer for this. D option. That was correct. Yes, D. sir. Yes, sir. Okay, so what is your understanding of this? You can explain. Sir, one second. Can I read the question over again? Okay. नहीं कोई नहीं मतलब हाँ अगर if let's say you can, if you remember. Yes, sir. So, it is not so. Taste controls appetite more than our brain's internal mechanisms to prevent overeating. Sir, I think B, C, and D were already mentioned in the passage, and A was not. So, no, wait. A, B, and C were already mentioned in the passage, and D was not. Okay. So, Okay. yes. Okay. तो अब इन्होंने क्या किया कि जो माइस है इनका कैलोरी इनटेक और वेट ओनली when fed with high fat tasty mouse diets and return to original levels of eating weight and neuron activity when fed with rodent chow will not show that. It is not only neurons that control appetites. Okay, it will show that. Okay, इसमें ये तो it will show that ना कि not only neuron but also taste. देखो ये एक्चुअली क्या ये इसने ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया नॉट डाल के. This will be shown, therefore this is wrong, because it will show that it is not only neurons but also the taste that controls appetites, and therefore this is wrong. Taste controls appetite more than an internal mechanisms to prevent overeating. Again, this will be shown. Okay, this will show that. तो कोई क्वेश्चन को ना उसने बहुत ट्रिकी बना दिया यहाँ नॉट डाल के. तो अगर आप यहाँ पे अगर ये ऐसा बोलता कि विल शो दैट एक्सेप्ट, ओके विल शो एवरीथिंग एक्सेप्ट, ये उसी तरह का क्वेश्चन. So it will show that it is not only neurons, it will show that it tails controls appetite more than our brains. High fat mouse diet leads to weight gain. Yes, this also will be shown because जब आप उसको इंक्रीज कर रहे हो तो वेट बढ़ जाता है और जब आप छोड़ देते हो तो वेट कम हो जाता है. तो दिस विल शो दैट हाई फैट माउस डाइट लीड टू वेट. So these three will be eliminated because of that. Overeating affects the activity of neurons that control appetite. Overeating affects the activity of neurons. It will not show that. Yes, because अगर एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स कंट्रोल करता तो फिर ये वापस से ओरिजिनल लेवल्स ऑफ उस पर नहीं आया. तो इसलिए ये करेक्ट आंसर. Tricky question, and again it will take a long time. So best to let it go. Author calls changing an animal diet a subtle manipulation because this was not very difficult. It is a simple change to trigger. Okay, ये गलत है इसमें. Use consequential changes ऐसा कुछ नहीं बोल रहा. So this is wrong. All right. Any doubts in this question? है इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बात करने को. ये देखो ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था. पैसेज में सिर्फ ये बताया गया कि जर्मनी में क्या हो रहा है कि अभी ग्लोबली इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. और वहां पे रिसेशन भी आ गया है ऑलमोस्ट. और छोटी जो कंपनी है एसएमई जिनको कहते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वो मुश्किल में आ गई है क्योंकि वो स्क्वीज हो रही है. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्या होती है, जैसे कि एंसिलरी यूनिट्स होती है, मारुति को कुछ सप्लाई कर रहा है तो वो क्या है बीच में फंस गई. एक तरफ तो ओईएम्स हैं
और उनके जो कस्टमर्स है, और दूसरी तरफ उनके जो सप्लायर, दोनों के बीच में फंस गई। प्लस इंडस्ट्री में भी चेंज आ रहा है, इंडस्ट्री 4.0 आ गई है, वहां पे आपको रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह लगाना है। तो छोटी फैक्ट्रीज जो हैं, उनको इनको इसमें चैलेंज आता है। और इसको मिडिल स्टैंड बोलते हैं। मिडिल स्टैंड मीन मीडियम, मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इन सब के कारण भी इनकी प्रॉब्लम होगी। तो इसके कारण यहाँ पे एक कंपनी का एग्जांपल दिया है, जो क्यूबनर करके कंपनी है। इन्होंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस जो था वो सेल कर दिया है, एक्सीलेटर पेडल्स वगैरह, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं और लेजर बनाने जा रहे हैं। ओके, तो आई डोंट थिंक इस पैसेज में कुछ कोई ऐसी बात समझने की है जिसको समझ नहीं आई किसी को, दे वांट मी टू एक्सप्लेन एनी पार्ट, और वी गो टू द क्वेश्चन स्ट्रेट। ओके, according to the passage, the radical steps referred to in the first line do not include. तो रेडिकल स्टेप्स कौन से हैं? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेजर बना रहे हैं, तो दिस इज रेडिकल पार्ट। शिफ्ट टू नॉन ऑटोमोबाइल मार्केट, ये भी रेडिकल पार्ट है। ओके, कि इंस्टेड इट फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो दिस इज आल्सो रेडिकल पार्ट। क्लोजिंग डाउन द रबर एंड प्लास्टिक्स, देखो ये रबर और प्लास्टिक बिजनेस क्लोज डाउन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वी कैन नॉट रियली से, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है कि सप्लायर ऑफ रबर एंड प्लास्टिक्स दैट एम्प्लॉय 3,300 पीपल इज सेलिंग इट्स यूनिट दैट मेक्स एक्सीलरेटर पेडल्स, कीपैड्स एंड ऑटो बॉडी पार्ट्स। लेकिन ये रबर और प्लास्टिक जो है, क्या इसको पूरा बंद कर रहे हैं? ये नहीं बताया क्लियरली। इट इज सेलिंग इट्स यूनिट दैट मेक्स दिस, दैट मीन इट मस्ट हैव यूनिट्स दैट मेक समथिंग एल्स आल्सो, so we can't say that। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ओके, सो ये आंसर है। किया था ये सबने? Yes, sir. ऑल द फॉलोइंग आर रीजन बिहाइंड एसएबी बैड शेप इन द फॉल आउट एक्सेल। देखो, अब ये जो क्वेश्चन है, ये मुझे मतलब थोड़ा सा गलत लग रहा है। गलत इन द सेंस, इसमें आप अगर देखेंगे तो दो आंसर, मतलब जो आंसर है, देखो ये तो बहुत क्लियर दिया हुआ है कि दे डोंट हैव स्पेयर कैश, दिस इज नॉट द आंसर। इट इज अ ट्रेमेंडस चैलेंज टू मॉडिफाई देयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। नाउ अब यहाँ पे आप पढ़ो अगर इनको, तो इससे हम ये डेफिनेटली असरदार कर सकते हैं। जैसे ये कह रहा है ना, nor are they well positioned to address structural changes like a dramatic shift in the beginnings of modern manufacturing. To my mind, this conveys this. But this fellow has said that this is not the answer. अच्छा, their clients are trying to cut costs by pushing SMEs too hard. ये तो है, तो ये क्लियर। अब आप इसको और इसको देखो, they cannot sustain their business at the prices this big manufacturers are setting. तो ये भी है, ये भी बोल रहा है वो एक तरफ से, ये और ये एक ही है, जो थर्ड और फोर्थ है आंसर, ये एक ही बात, और ये भी है। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही आंसर है, बट ही हैज एक्चुअली मार्क्ड सेकंड इन द आंसर, ओके, एंड नॉट फोर्थ। बट मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही आंसर, मतलब मैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा गलत क्वेश्चन, बिकॉज डेफिनेटली यू कैन असेस दिस, इट्स अ ट्रेमेंडस चैलेंज टू मॉडिफाई द टेक्निक्स। जो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन आर दे वेल पोजिशन टू एड्रेस स्ट्रक्चरल चेंजेस लाइक ए ड्रामेटिक शिफ्ट। बताइए, किसी ने किया? व्हाट इज योर व्यू ऑफ दिस? नो व्यू? ठीक है, कोई बात, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बहुत इजी है। okay, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट। ये डिफिकल्ट, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। परफेक्ट स्टॉर्म इज प्रोबेबली अ मेटाफर फॉर, यहाँ पे देखो पढ़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। Deep in Europe's manufacturing core, a German company is taking radical steps to cope with a perfect storm that has sent traditional economic pillars into a tailspin and put the countries on the verge to recession. तो अब आप यहाँ से समझो कि ये क्या कहने की कि एक परफेक्ट स्ट्रॉम है, और इसके कारण क्या इम्पैक्ट हुआ है। एक तो ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक जो आपका पिलर्स हैं, ये चले गए टेल स्पिन में, और एक रिसेशन आ गया। तो ये जो परफेक्ट स्टॉर्म है, ये खुद ये नहीं है, इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक पिलर डाउन टर्न, एंड इट इज नीदर अ रिसेशन। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये जो दो ऑप्शन है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक पिलर्स, ये नहीं है ये, सिमिलरली रिसेशन भी नहीं है, इट इज इनफैक्ट कॉजिंग दीज टू।
Therefore, these two can be ruled out. So it is actually the C, geopolitical and manufacturing shifts adversely affecting the German economy. This is the perfect storm which is making the first two things happen. Okay, so C was the right answer. थोड़ा सा challenging, but I hope you understood. Okay. Yes. सागर, yes, बोलिए. सर जो 14th वाला क्वेश्चन था, हम्म. तो सर उसमें आप फोर्थ ऑप्शन भी कह रहे थे कि वो भी आंसर आपको लग रहा था. नहीं, मेरे को दोनों ही लग रहे थे. हाँ, सही बोल रहे हो. सर बट हाँ, उसमें पैसेज में तो लिखा हुआ है कि दे आर गेटिंग स्क्वीज बाय जर्मन कार मेकर्स वगैरह. देखो मैं आपको मेरा लॉजिक बताऊं मेरे को क्या था. मैं आपको बताता हूँ हाउ आई वाज थिंकिंग. हम्म. तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये और ये ऑप्शन एक ही है एक तरह से. दे आर यस. ट्राइंग टू कट कॉस्ट. देयर क्लाइंट्स आर ट्राइंग टू कट कॉस्ट बाय पुशिंग एसएमईज टू हार्ड. तो ये लिखा ना, दे आर मोर और लेस सैंडविच्ड बिटवीन बिग कंपनीज एंड देयर कस्टमर्स. हम्म. ठीक है. तो ये क्या होगा. तो अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वाला तो मैच कर रहा है इससे. देयर क्लाइंट्स आर ट्राइंग टू कट कॉस्ट बाय पुशिंग एसएमईज टू हार्ड. यस सर. और they cannot sustain the business at the price big manufacturers are selling or setting. तो हम्म. ये भी एक तरह से मतलब है. बट आई फाउंड कि अभी दो दो ऑप्शन. अच्छा, इसमें ये कैसे गलत है वैसे. ये आपने गलत मार्क मतलब ये मार्क किया था करेक्ट नहीं. यस सर, मैंने बी मार्क किया था. नहीं तो ये आपने कैसे जस्टिफाई किया. मतलब मेरे को भी देखो, मुझे तो ये दोनों ही जो है ना हम्म. ठीक लग रहे थे. इसमें ये इसको क्यों नहीं कर सकते हम इंटरप्रेट. हम्म. सर बेसिकली जो सेकंड वाला था उसमें जो पैसेज में लिखा था वो डायरेक्टली शिफ्ट लिखा था, मेरे ख्याल से मॉडिफाई नहीं लिखा था. और एक उसमें मिनट एक मिनट एक मिनट. नॉर आर दे वेल पोजिशन टू एड्रेस स्ट्रक्चरल चैलेंजेस लाइक अ ड्रामेटिक शिफ्ट इन द अंडरपिनिंग्स ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग. इसका मतलब क्या होगा. सर मतलब इसमें तो पूरा ही चेंज कर देना हुआ ना, अगर ड्रामेटिक शिफ्ट का मतलब, तो मैंने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया था कि पूरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग चेंज कर देना. और इसमें फिर मैन्युफैक्चरिंग चेंज नहीं है क्या. ये मॉडिफाई देयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स. सर बस मॉडिफाई मतलब हल्का सा अपग्रेड मतलब क्या करना, होता वो पूरा वैसे है. चेंज नहीं हुआ. मॉडिफाई मैंने मतलब क्या इसे होता है. डायरेक्टली वैसे नहीं लिया था, नहीं मैंने ऐसा थोड़ी है. मॉडिफाई मतलब देखो यार, मॉडिफाई मतलब क्या होता है. मॉडिफाई मतलब चेंज. अब आप मॉडिफिकेशन की इंटेंसिटी थोड़ी बता सकते हो. यस सर. नहीं. तो मुझे इस एंगल से ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है. मतलब ये भी ठीक लग रहा है मुझे. आई एम नॉट सेइंग दैट ये गलत है. ये भी हम्म. ठीक है. ये हम्म. दोनों ही लग रहे थे. तो मुझे थोड़ा सा ये मतलब मुझे इनकंसिस्टेंसी लगी है बेसिकली. ये मैं बोलने की कोशिश करूँ इस वाला. यस. बट ठीक है, इट्स ओके. व्हाट एवर इज गिवन. तो देखो, इन नटशेल इसमें इस वाली जो मॉक में इसीलिए इसके स्कोर्स कम है. आप देखिए कि पिछली वाली मॉक की कंपैरिजन में इसमें कम स्कोर आए लोगों के. क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जैसे थर्ड पैसेज था वो थोड़ा टेढ़ा था और दो क्वेश्चन बिल्कुल ही बेकार से थे. और एक दो क्वेश्चन बाकी के पैसेजेस में भी बेकार से थे. इसलिए ओवरऑल जो है वो आप देखेंगे कि थोड़ा सा. हाँ, आई एम नॉट सेइंग इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट मॉक और एनीथिंग. ऐसी ही आती है. और आपको फिगर आउट करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं. यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं. और आप अगर एक ठीक ठाक से सोच के ठीक ठाक क्वेश्चन करोगे तो आपके स्कोर आ जाएगा. ऐसा नहीं है. ऑलराइट. चलिए, सो दैट does it for the time being. Any questions, any thoughts, views before we wind up. Final. कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है. सर एक और क्वेश्चन था. सर एक सेकंड. हाँ, लेट सागर फिनिश. हाँ, बोलो सागर. सर जैसे आपने ये बताया था कि इस ऑर्डर में आपने किए थे पैसेज, जैसे आपने मेरे ख्याल हाँ, से 1423 कहा था. देखो मैंने क्या किया. मैं पहले ये करता हूँ वहां से. ठीक है. आई हैव अ वेरी क्लियर स्टार्ट. I don't even look at the RC in the beginning. I straight away go to VA. ये I सर. will finish VA first. I try to take not more than 12 to 13 minutes there. Okay, मैं इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम लगा के करता हूँ. उसके बाद में मैं आई कम टू आरसी. ओके, उसके बाद में मैं अपना आरसी का ऑर्डर बनाता हूँ. तो मैंने ये ऑर्डर बनाया. ठीक है. तो अब इसमें पैसेज 1 और 4 करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं. अगर देखो 1 और 2 4 पैसेज थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा तो आपको फिर दो में से एक ही करता हूँ. तो मैंने फिर 2 पकड़ लिया. 2 भी कर लिया. तो 3 पैसेज तो मैंने ठीक ठाक से कर लिया. ठीक है. लेकिन इसमें मुझे एंड में आ गया थोड़ा चैलेंज था टाइम वाइम, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम बच गया. तो आई वेंट फॉर द थर्ड पैसेज बट देन आई फाउंड दैट इट वाज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम.
और वो जो दो क्वेश्चन मैंने गलत इसलिए फिर क्योंकि मैं उसको ढंग से करने का मेरे पास वो टाइम काफी निकल गया, तो देन आई मार्क वोट एवर टू मार्क, इसलिए मेरे दो वो गलत। ओके, तो द पॉइंट इज कि इस तरह से सिलेक्शन करने में क्या है कि एटलीस्ट मेरे ये तीन में मेरा बहुत बढ़िया हो कि इन तीन में आई कुड स्कोर वेरी वेल, एंड इसमें दो करेक्ट हो गए मेरे। तो ठीक है, मतलब देन इट बिकेम अ रीजनेबली ऑलराइट परफॉर्मेंस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट। अब आपका क्वेश्चन क्या था? सर जैसे मैंने भी यही फॉलो किया था, जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि हाँ वीए पहले कर लो ताकि जो रीडिंग हाँ स्पीड इंक्रीज हो जाती है बीच में। हाँ। तो सर मैंने वीए के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, हम्म, अदर देन द पैरासमरी। हम्म, तो पैरासमरी लास्ट के लिए रख लिए थे ताकि अगर मतलब टाइम क्रंच होता है, जैसे 2-3 मिनट रह जाते तो उसमें एक पैसेज पूरा तो नहीं राइट पढ़, राइट, तो लास्ट में 1-2 वीए के छोड़ देता हूँ मैं, ताकि करेक्ट। अगर तो एंड में कर लूँ। सर 5 वो किए थे, और फिर उसके बाद मैंने पैसेज किया था 1, 2 और 4, मतलब इस ऑर्डर में किया था। वन टू बट और फोर। हाँ यस, और हाँ सर ठीक है। फोर्थ फोर्थ वाला पैसेज मेरे को काफी ज्यादा इजी लगा, मतलब वो हाँ मैं ठीक है। बाद में करता तो फिर वन फर्स्ट प्रेफरेंस देता उसे। बट सर ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि मतलब 4 हाँ पहले करना था इन दोनों से, तो सर वो नहीं कैसे नहीं, वो देखो वो डिपेंड, जैसे मैं आपको मतलब बता रहा हूँ ना कि जो लोग थोड़े से जो मतलब जिन्हें बिजनेस इकोनॉमिक्स कॉमर्स थोड़ा सा हम्म अच्छा लगता है, देखो कुछ लोग, अब जैसे प्रथा ने कहा कि भाई मुझे ये साइंस वाले और मुझे इस तरह से ये वाले अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये पकड़ लिया, तो दैट्स ओके, दैट्स हर चॉइस। तो अब इसमें हर एक हमारे स्वीट स्पॉट्स होते हैं, सभी के होते हैं, किसी का कोई सा होगा, किसी का कोई सा होगा। जैसे मैं पर्सनली मुझे बोलोगे तो मुझे वो जो भी बिजनेस वाले और ऐसे होते हैं, मैं मतलब मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक अ केस, ओके, व्हिच इज यू एनीवे कीप रीडिंग एवरी डे, मतलब ये कोई इसमें आपको सरप्राइजेस बहुत सारे नहीं मिलेंगे, ये एक जैसे हम बिजनेस में मिंट के रोज आर्टिकल पढ़ते हैं, ये वाला यस जो पैसेज होगा ना, ये इवन जो फर्स्ट फॉर दैट मैटर, मतलब ओके लेट मी को रिलेट इट नाउ विद द मिंट आर्टिकल, इफ यू लुक एट फर्स्ट एंड यू लुक एट फोर्थ, they will be exactly like some of the article that we are reading every day in Mint, isn't यस it? सर। So हम्म therefore, we will be able to handle those much better. Now, when we come to this language वाला article, तो ये इस तरह के हम ये अब हम abstract हमने पढ़ने शुरू किए, लैंग्वेज के ऊपर अपने कई सारे आर्टिकल पढ़े, लेकिन ये जो इस तरह के होते हैं ये, सी आई मीन देखो किसी को अगर ये अच्छे लगते हैं एंड देन दे आर गुड एट इट, आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू डिसुएड यू, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग कि आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट कि इसको नहीं करना चाहिए पहले, या देखो वर्बल में आरसी में आपको कोई भी चीज है ना एब्सोल्यूट या डेफिनेटिव नहीं होती, ये रिलेटिव होती है, तो अगर आपको इफ समथिंग इज यू नो गिविंग यू गुड performances, then don't change that. Okay, then let it continue. But if let's say you're not getting the desired or optimal result, then you need to look at कि ठीक है फिर हम उसको और ऑप्टिमाइज कैसे करें। तो इसलिए ये वाला जो था, और अल्टीमेटली तो इट प्रूव करेक्ट ऑल्सो, बिकॉज ये जो दो क्वेश्चन थे इसमें काफी टाइम लग गया और वो फिर भी गलत, तो वो तो फॉर्चुनेटली सपोज आई हैड पिक्ड अप इन द बिगिनिंग, then my whole thing would have got derailed because of this. My, at least personally, I'm saying. हम्म So I would go about, having something concrete in the beginning, which I'm much familiar with, and having abstract things towards the latter part. अब इसमें भी देखो यार, ये नहीं है, कई बार कॉन्क्रीट में डिफिकल्ट क्वेश्चन निकल जाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट में इजी क्वेश्चन निकल जाते हैं, तो ये एक साइंस नहीं है 100%, और आप उसको एक फॉर्मूला नहीं बना सकते हो कि यही होगा, पर हाँ मोटा मोटा आप ये सोच सकते हो कि 80% थिंग्स विल वर्क अकॉर्डिंग टू, बट यहीं पे हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो कैट में या कभी जाते हैं ना, तो वो बहुत रिजिड माइंडसेट से जाते हैं, इतने तो क्वेश्चन करना ही करना है, इतना तो ये करना ही करना है, ऐसा नहीं है, आपको असेस करना पड़ेगा डिफिकल्टी लेवल देख के, और उस हिसाब से अपना गियर चेंज करना पड़ेगा। अगर लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है सारे पैसेजेस, तो प्लीज रिड्यूस योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, बिकॉज सभी के लिए डिफिकल्ट है, ईजी है तो सभी के लिए ईजी है, देन इंक्रीज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ओके, एनी अदर पॉइंट और थॉट? यस चेतना। सर एज यू सेड कि आप सब्जेक्ट देखते हो अगर आरसी चूज करनी होती है, बट आई फेल्ट लाइक कि अगर जो सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल फिलोसफी और समथिंग आर द सब्जेक्ट्स दैट आई लाइक टू रीड, बट उसके क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं। फॉर एग्जांपल द फोर्थ पैसेज, आई फेल्ट लाइक इट वाज वेरी इजी टू रीड बट सम ऑफ द क्वेश्चंस वर वेरी ट्रिकी, सो आई फोर्थ फील लाइक कि पैसेज रादर देन डूइंग, इसमें। यस सर, माय यस सर माय एक्यूरेसी इन फोर्थ पैसेज, जिसमें से मेरे सिर्फ दो ही सही थे, बाकी दो हाँ गलत थे। ओके ओके। So I felt like, so what I do is I skim through RC, then I feel like कि जो भी RC are more easy to comprehend,
मैं उसके लिए जाती हूँ, एंड आई ऑल्सो सी द क्वेश्चंस कि अगर वो क्वेश्चंस इंफरेंस बेस्ड है या कंक्लूजन बेस्ड है, इट इज और इज इट डायरेक्टली बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स और द, अगर मैं डायरेक्टली आरसी में जाके वो पॉइंट आउट कर सकती हूँ, तो दैट्स व्हाट आई डू, बट इन दैट प्रोसीजर इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम. देखो वो So आपको what do you नहीं करना चाहिए. suggest? नो, आई डोंट सजेस्ट दैट looking at questions will help you at all, because in absence of reading of a passage, questions will absolutely have hardly any meaning. ओके, तो आप पैसेज की All क्वेश्चंस right. देख के अपना डिसीजन लेने की जो कोशिश कर रहे हो ना, वो आप, आई वुड से दैट यू स्टॉप डूइंग दैट. यू विल सेव टाइम. You can All right, definitely sir. select your favorite area, or you can definitely select what you are comfortable with, but don't look at questions will not give you. देखो, हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कोई सा पैसेज है, दो पैसेज बच गए, लास्ट में टाइम नहीं है, तो आपने क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन में अगर आपको मेन आइडिया टाइप का दिख गया, या कोई वोकैब बेस दिख गया, कोई फ्रेज है तो दिख गया, पीडीएम वीडीएम दिख गया, तो आप कर सकते हो. आप सोचते हो हाँ ये तो फटाफट हो जाएगा, लेकिन अब वो ऐसे आते नहीं है. जितने भी क्वेश्चंस जो बन रहे हैं ना आजकल कैट में, वो सब क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, और इन्फरेंस और इंटरप्रिटेशन, और उसमें डबल नेगेटिव और ट्रिपल नेगेटिव ऐसे ही बन रहे हैं. तो क्वेश्चन देख के कुछ समझ ही नहीं All आया. right. तो इसलिए सेव योर टाइम. आई वुड सजेस्ट डोंट डू दैट. All right, sir. ओके, चेतन हैड अ क्वेश्चन. Let me read it out. Was this mock subpar compared to CAT 2022? Subpar in what sense? देखो, if you look at the difficulty level, okay, which is demonstrated by the kind of percentile that people have got with respect to the sports record, तो आप सोचो कि इसमें काफी मिररिंग हो रही है. मतलब जो कैट 2022 का परसेंटाइल रहा, मैंने आपको जो अभी बताया कि 37-38 मार्क्स के ऊपर 99 परसेंटाइल आए लोगों के, और 40 के ऊपर मार्क्स के ऊपर फिर 99.5, और 48 वगैरह पे तो 100 परसेंटाइल आ गए. तो वही उसमें भी हुआ था. तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड मिररिंग ऑफ दैट इन दैट सेंस, बट आई वुड नॉट से दैट इंडिविजुअल लेवल पे क्या ये मैच कर गया. ओवरऑल मैच कर गया मतलब आप समझ जाओ कि इसका डिफिकल्टी लेवल काफी कुछ उसके जैसा था ओवरऑल. यस, यू कैन से दैट. ऑलराइट, आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन. Okay, so if there's no more question, we will wind it up. All right, thank you. I hope the session was useful, and look forward to you the next time. Thank you. Thank you. Thank you.